Definitions of probability. Mathematical or classical definition of probability. If there are m possible outcomes that favor the occurrence of event E out of n mutually exclusive and exhaustive and equally likely outcomes of an experiment, then the probability of occurrence of E denoted by probability of E is the ratio of m to n, defined as probability of E equal to m upon n equal to number of cases favorable to an event over total number of possible cases. And this definition of probability was given by Laplace. सेकंड डेफिनेशन जो है statistical or empirical definition of probability. If n represents sufficiently large number of trials made to see whether an event E occurs or not, and m represents the number of trials in which it is observed favorable to E, then the probability of occurrence of E is given by probability of E is equal to limit n goes to infinity m upon n, provided the circumstances from trial to trial remains the same. This definition was given by von Mises. Axiomatic definition of probability. Probability is a number assigned to occurrence of an event in a sample space with every event E in a finite sample space S. We associate a real number, probability of E, which is called probability of event E if it satisfies the following axioms. तो क्या क्या है? नंबर वन, 0 is less than equal to probability of E is less than equal to 1 for each subset E of S, which implies that probability of an event always varies from 0 to 1. तो probability जो है वो किसी event की 0 और 1 के बीच, यानी कि 0 से लेकर के 1 तक, 0 हो सकती है या उससे ज़्यादा और मैक्सिमम 1, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 हो सकती है. Probability of sample space is equal to 1, that is probability of sure event or probability of certain event is 1. If A and B are mutually exclusive events, then the probability of A or B, that is A union B, is equal to probability of A plus probability of B. ये कब होता है? जब events जो हैं A और B events जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, दैट इज उनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो. तो उन events को जिनको हम इंडिपेंडेंट events कहते हैं वो हों, तो probability of A यूनियन B किसके बराबर होगी? Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. तो इस तरीके से ये तीन डेफिनेशंस हैं, मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल definition of probability and axiomatic definition of probability. तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, राइट द सैंपल स्पेस व्हेन ए डाई इज थ्रोन. तो डाई क्या है? ये 6 फेसेस क्यूब है. ये देखिए इसमें ये 6 है, ये 4 है, ये ऊपर 1 है, ये 3 है, ये 2 है और
ये 5 है। तो इस तरीके से इसके जो फेसेस हैं 6 फेसेस, एक फेस में 1 2 और ये आ गया 3, ये 4 और ये आ गया 5 और ये आ गया हमारे पास 6। तो इस तरीके से जब हम इसको थ्रो करेंगे तो आने की क्या संभावना है। मान लिया मैं इसको ये थ्रो करता हूँ, ये देखिए, तो ये मेरे पास 5 आ गया। इस तरीके से फिर करता हूँ तो ये मेरे पास 3 आ गया, ये देखिए। फिर मैं करता हूँ तो ये 6 आ गया। तो इस तरीके से इसमें जो आने की संभावना है, आने के चांसेस जो हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये आ गया when sample space when a die is thrown। सिमिलरली अब हम इसके बात करेंगे सैंपल स्पेस when 2 dice are thrown। तो ये इसका आ गया ये 6। तो इसके बाद करेंगे, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, राइट द सैंपल स्पेस when a die is thrown। तो इसके बाद करेंगे हम राइट द सैंपल स्पेस when 2 dice are thrown together। तो देखिए अब हम करेंगे राइट द सैंपल स्पेस when 2 dice are thrown together। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैंपल स्पेस है। तो देखिए 1 1 या तो दोनों में 1 1 होगा, या पहले में 1 और दूसरे में 2, या पहले 1 में और दूसरे में 3, 1 4 1 5 1 6, 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इसमें ये टोटल कितने बनेंगे 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो इसमें ये टोटल जो NS बनता है इसका वो 36 बनता है। और मिनिमम दोनों को सम करके नंबर्स को जब ऊपर दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आता है मिनिमम नंबर, उनको अगर सम करें तो वो 1 + 1 2 आता है, और मैक्सिमम जो है वो 6 + 6 12 आता है। एक ये ऑब्जर्वेशन है इसमें। दूसरा क्या है कि इसमें डबलेट, जैसे ये एक डबलेट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये 6 डबलेट होते हैं, 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 और 1 1। तो when 2 dice are thrown, जो सैंपल स्पेस बनाने हैं तो इस तरीके से बनाने हैं कि 1 2 3 4 5 6 एक के फेसेस हमने ऊपर रख दिए और एक के फेसेस हमने इस तरीके से लिख दिए। तो मान लिया ये पहले है तो ये सेकंड वाले। तो इस तरीके से वो हमें क्वेश्चन पूछता है कि
कोई इवेंट देता है जिसमें फर्स्ट डाई 4 पर है, तो अगर ये हमने फर्स्ट डाई रखी होगी तो पहला जो 4 होगा। और मान लिया वो रखता है कि सेकंड डाई इज़ 5, तो फिर ये सेकंड डाई 5 है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट होगी तो ये सेकंड होगी तो ये 5 हो गया। अगर ये फर्स्ट रखी है आपने और इसको सेकंड रखा है तो उसी हिसाब से आपने इसको करना है। तो इसमें जो सैंपल स्पेस बनेंगे एस इक्वल टू सैंपल स्पेस when 2 dice are thrown, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये इस तरीके से होगा। तो NS यहाँ पर कितना हो गया 36, तो ये हो गया 6 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक बार थ्रो करेंगे तो 6⁻1 6 आएंगी फेसिस, और 2 बार थ्रो करेंगे 2 टाइम्स थ्रो करेंगे या 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 6⁻2 हो गया 36। अगर 3 टाइम करेंगे तो 6⁻³ 6 × 6 × 6, तो वो आएगा 216। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैम्पल स्पेस है। हमारे बहुत से क्वेश्चन 2 डाइस पर डिपेंड करते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से हमने ये तैयार करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लेइंग कार्ड्स पर, क्योंकि हमारे इस पर बहुत से क्वेश्चन जो हैं प्रोबेबिलिटी में वो प्लेइंग कार्ड्स पर है। तो डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जो है इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अगर आप बाज़ार से ये खरीदेंगे तो इसमें आपको 54 कार्ड्स दिखेंगे। इनमें 2 जो हैं ये एक्स्ट्रा कार्ड होते हैं, एक कार्ड के ऊपर होता है और एक टोटल डेक के नीचे होता है, इसलिए कि डेक को कोई लॉस ना हो, जो अंदर उसके कार्ड जो होते हैं उनको कोई लॉस ना हो। तो ये 2 कार्ड होते हैं एक्स्ट्रा कार्ड, ठीक है। अब हमारी जो क्वेश्चन होते हैं या जो हमारा ये जो मैंने आज आपको यहाँ से टेबल के जरिए आपको बताना है वो इन 52 कार्ड्स पर बताना है। तो ये जो कार्ड है इसको हम स्पेड बोलते हैं। पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे ये जो सूट हैं इसमें टोटल 4 सूट हैं, स्पेड है, क्लब है, डायमंड है और हर्ट है। तो हर एक के 13 है, इसके भी 13 है, इसके भी 13, इसके भी 13, इसके भी 13, तो 4 13s are 52, यानी कि टोटल जो है वो 52 कार्ड्स हैं। तो देखिए इसको हम बोलते हैं, ये जो यहाँ पर इसका इन्होंने इंडिकेशन दी है, सिंबल दिया है, तो ये जो है ये स्पेड है। ऐसे ही स्पेड के कितने कार्ड हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा, गिन लेंगे। ये देखिए ये स्पेड के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब देखिए ये स्पेड का एस है,
ये स्पेड का किंग है, ये क्वीन है, ये जैक है, ये 10 है, ये 9, ये 8। इनको हम दोनों तरीक़ों से उल्टा करके देखेंगे तब भी दिखेगा, ये देखिए, और ऐसे करेंगे तब भी दिखेगा। ये देखो, ये 6 है, ये 5, ये 4, ये 3 और ये 2। तो देखिए, आपने अभी इसमें देखा तो इसमें ये जो कार्ड है हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो एस इसमें आपने एक था, ऐसे ही एक किंग देखा आपने, एक क्वीन देखी, जैक भी एक था, 10 भी एक, 9 भी एक, 8 भी एक, 7 भी एक, ये सारे एक एक था, और टोटल हो गई ये 13। एक बार फिर देख लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो ये 2 आ गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6 भी एक ही है, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि जैक, क्वीन, किंग और एस। ऐसे ही ये हमारे पास आ गए 13 हर्ट के 13 आएंगे। ये है हर्ट, तो इसका देख लीजिए, ये आ गया, इसका कलर रेड है, और एक है ये एस भी। इस तरीके से ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जैक, क्वीन एंड किंग। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, कलर में इसका आएगा रेड, और सब आपने खुद देखे, एक एक दिया गया। ये हो गए 30। इसके बाद अब आएगा हमारे पास क्लब। इसका कलर भी ब्लैक है, ये देखिए, एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। तो इसमें भी लिख लीजिए, कलर ब्लैक है और बाकी सब एक एक है। अब आ गया हमारे पास, स्पेड भी हो गया, क्लब भी हो गया, डायमंड भी हो गया। डायमंड नहीं हुआ है, हर्ट हुआ है। तो अब आ गया डायमंड। ये देखिए, ये डायमंड कार्ड है। तो एस, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन और किंग। तो कलर क्या आ गया? रेड। 1 जी आ गया। तो अब देखिए टोटल में 13 इसके हैं, 13 इसके हैं, 13 इसके हैं, 13 इसके हैं, तो ये हो गए 52। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 1 1 1 1 टोटल हो गए ये 4, ये भी 4, ये सारे 4 4 आ गए। तो इन 4 को अगर हम प्लस करेंगे सबको तो ये 52 बनेंगे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 4 52। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 13 स्पेड के हैं और 13 क्लब के, 26 हो गए। देखिए यहाँ पर टोटल ब्लैक कार्ड्स, टोटल ब्लैक कार्ड्स, तो ये हो गए 13 + 13 = 26। ऐसे ही टोटल रेड कार्ड कितने हो गए? 13 + 13 26। इस तरीके से एस 4 है जिसमें 2 ब्लैक होंगे 2 रेड होंगे, किंग 2 ब्लैक होंगे 2 रेड होंगे, क्वीन 2 ब्लैक होंगे 2 रेड होंगे। ये सारे इस तरीके से ही है। फिर है इसमें फेस कार्ड। तो फेस इन तीनों का होता है, किंग का, क्वीन का और जैक का। ये देखिए फेस जो है वो किंग का है, क्वीन का है और जैक का है। तो 4 3 12, 12 जो है ये फेस कार्ड है। तो इस तरीके से ये जो है प्लेइंग कार्ड्स की डिटेल है। तो आपने इसको देख करके इसके क्वेश्चन निकालने हैं।